Hello dear students, today our topic is lesson 2 of Footprints Without Feet book named The Adventures of Toto. Toto is the name of a monkey. This is the story of a monkey, and adventures means encountering the risk. Here in this story we shall read how a person is here grandfather, how a grandfather faces encounters the risk of keeping monkey as a pet in his house. Let us see the story. Most of us we keep a dog, a cat as a pet at our homes, but in this story, grandfather had brought monkey to keep as a pet. Let us see what type of problems he will face after bringing the Toto at his home. So, have you heard a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी सुना है कि बेबी मंकी को एज ए पेट पालतू रखा गया हो? टोटो इज़ ए बेबी मंकी. लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. तो हम देखें कि वो शरारती है या डोसाइल है, फ्रेंडली है. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. In this story, grandfather he purchased Toto monkey from a Tonga driver at the cost of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough, a square box is there that is used for feeding, and he used to keep the monkey tied there, and the monkey looked so out of place there. The father decided he would add the little fellow to his private zoo. Here private zoo means grandfather had already so many animals in his house, so he decided that he would add the little fellow to his private zoo. Let us see further what type of monkey he was. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, उसके दांत जो थे वो मोती की तरह चमकते थे, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. So in his eyes he was having a shine, but that shine sometimes it was frightening the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Sometimes people are afraid by watching the monkey. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Monkeys के जो हैंड थे वो इतने ड्राई हैं धूप के अंदर, ऐसे लगता है जैसे धूप में पिकल्ड सूख गई हों, जैसे अचार सूखा पड़ा होता है. पिकल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे अचार होता है, लेकिन यहाँ क्या शो कर रहा है कि उसकी उंगलियाँ बिल्कुल सूखी हुई हैं, ड्राई अप हैं. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Also served as a third hand. कि जो his fingers were quick and wicked. ड्राई तो हैं लेकिन it was very active. And his tail, उसकी जो पूँछ है, adding to his good looks. According to grandfather की जो tail है उससे क्या उसकी सुंदरता बनी हुई है. Also served as a third hand. जो मंकी की पूँछ होती है वो उसका तीसरा हाथ होती है. He could use it to hang from a branch. Monkey use it for hanging from one branch to another branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. Capable of scooping up whatever things are beyond his hands by covering the branch of a tree. He was able to take it with the help of his tail. Next is grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. Now here we will see the story कि grandmother is always first. First means creating problem.
कि when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. Grandfather decided that the news of Toto should not be conveyed to grandmother, otherwise she will create a problem. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. Grandmother and I, who's I here? Narrator of the story. सेट हमने डिसाइड किया कि इसको एक क्लोसेट अलमीरा के अंदर इसको बंद कर देंगे, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, तो टू ए सो वी थॉट टू ए पैग फास्टन्ड इनटू द वॉल. पैग मीन्स एक उन्होंने कील लगा दी दीवार के अंदर और इसको बांध दिया. अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood as naked brick and plaster. So here the starting of the adventures of Toto. Author is saying that when they came back, जब हम वापस आए तो वो जो वॉल जो डेकोरेटेड थी पेपर्स के साथ, वो उसका सारा पेपर फाड़ दिया. अब उसमें सिर्फ ब्रिक और प्लास्टर दिख रहा है, ईंटें और प्लास्टर दिख रहा है. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो पेग हमने कील लगाई थी दीवार के अंदर, जो खूंटा लगाया था, वो उसने निकाल दिया. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स. श्रेड्स का मीनिंग क्या होता है? पीसीस. और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर था उस अलमीरा के अंदर, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, मतलब फाड़ दिया मंकी ने. आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी. ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस. हमें हैरानी थी कि ग्रैंड मदर कुछ कहेगी, लेकिन ग्रैंड फादर को चिंता नहीं थी. ही सीम्ड प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी, विद टोटोज परफॉर्मेंस. वो बड़ा खुश हो गया, वाओ टोटो ने देखो क्या शरारत की है. He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. Grandfather says that ये बहुत चालाक मंकी है. अगर इसको टाइम दिया जाए तो ब्लेज़र के जो पीसीज हैं उसको जोड़कर बांधकर ये एक रस्सी बना सकता है और विंडो से भाग सकता है. नेक्स्ट लेट अस सी. His presence in the house still a secret. अभी किसी को पता नहीं है. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अब टोटो को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? विदाउट द नॉलेज ऑफ ग्रैंड मदर. कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स. जहाँ सर्वेंट रहते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा पिंजरा है. where a number of grandfather's pets lived very sociably together. सारे मिलकर रहते हैं वहाँ पर. कौन कौन से हैं देखें. प्राइवेट ज़ू है ग्रैंडफादर का. कौन कौन से एनिमल हैं उसके अंदर? टोर्टोइस, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश हैं, ए टेम स्क्विरल, पालतू गिलहरी है, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, एक बकरी भी है. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. अब मंकी जो है रात को किसी को सोने नहीं देता था. सो ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून टू नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर. डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. तो ग्रैंडफादर को नेक्स्ट डे पेंशन लेने जाना था सहारनपुर में, यूपी में है सहारनपुर. तो सोचा कि इसको साथ ही ले जाते हैं, नहीं तो ये सोने नहीं देगा किसी को. अनफॉर्चुनेटली I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. Author is saying that unfortunately मैं सहारनपुर अपने दादा के साथ नहीं जा पाया, but grandfather told me all the things what happened on the way. A big black canvas kit bag was provided for Toto. एक बिग ब्लैक कैनवस बैग, जो मोटा कपड़ा होता है उसका एक बैग तैयार किया गया.
दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसके बॉटम में क्या रखेगी, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होती है, ड्राई ग्रास, पराली जिसको बोलते हैं। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड मतलब लिविंग प्लेस। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग and the canvas was too strong for him to bite his way through। तो कैनवस इतना मोटा कपड़ा होता है कि उसको फाड़ भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। वो कोशिश कर रहा था बाहर आने की, लेकिन वो एक क्या होता है, बैग घूम जाता था क्योंकि ऊपर से बंद था वो। तो सम टाइम ही वो जंपिंग, तो बैग ऑटोमेटिकली जंप करता था। तो काफ़ी लोग जो देहरादून रेलवे स्टेशन पे थे उस चीज़ को देख रहे थे कि बैग ऑटोमेटिकली जंप कैसे कर रहा है। नेक्स्ट इज टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। तो जब तक टिकट नहीं ली तब तक वो बैग में ही था। तो while grandfather was producing his ticket at railway turnstile, turnstile एक लॉक बार होता है, जब आप उसमें कार्ड डालते हैं, टिकट डालते हैं तो वो खुल जाता है। Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। ग्रिन का मतलब होता है स्माइल। तो बैग में से अपना माउथ बाहर निकाल लेता है और टिकट कलेक्टर को क्या देता है, स्माइल। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज, शॉक्ड, टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज, शॉक्ड, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। आपके पास डॉग है और आपको इसकी पेमेंट करनी होगी, मतलब इसकी भी टिकट आपको लेनी होगी। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज ए क्वाड्रूप्ड। इन वेन का मतलब होता है यूजलेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन वेन, यूजलेस एफर्ट्स, बेकार में। ग्रैंडफादर ने बेकार में ही उस टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई, बेकार में उसने कोशिश की ये प्रूव करने की कि मंकी जो है वो डॉग नहीं है और एज ए क्वाड्रूप, 4 पैरों वाला नहीं है, क्योंकि डॉग के 4 पैर होते हैं। क्वाड्रूप का मतलब होता है 4 फीट। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare। तो ये आपने याद रखना है, 3 रुपीज़, कितनी टिकट लगी उसकी, फेयर कितना था, 3 रुपीज़। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, अपना रिवेंज लेने के लिए, took from his pocket out pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। तो ग्रैंडफादर को गुस्सा आया और उसने एक टॉर्टोइज अपनी पॉकेट में जो साथ लेकर ट्रैवल कर रहे थे वो निकाला और पूछा कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए क्या पे करूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सभी एनिमल्स का चार्ज करते, बताओ इसका क्या पे करना है। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, प्रोडेड इट मतलब पुश्ड इट, टच किया टॉर्टोइज को, एंड गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग। बड़े स्माइल के साथ ग्रैंडफादर को टिकट कलेक्टर ने कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग, ये डॉग नहीं है, ये टॉर्टोइज है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज when Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana। तो वो सीन सहारनपुर का था। उसके बाद फिर से चलते हैं स्टोरी की तरफ टोटो की। अब इसको ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया है।
तो उसको स्टेबल में कंफर्टेबल होम दे दिया। स्टेबल क्या होता है? घोड़ों का अस्तबल, जहाँ घोड़े रहते हैं। तो वहाँ पर उसके कंपेनियन था, साथी कौन है? फैमिली डंकी नाना। ऑन टोटो's फर्स्ट night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. फर्स्ट नाइट स्टेबल के अंदर जब थी टोटो की, ग्रैंडफादर उसे देखने गया कि वो कंफर्टेबल है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट पेरेंट कोज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। तो ग्रैंडफादर ने देखा कि फॉर नो रीज़न, ऐसा कारण नहीं था कि जो ग्रैंड डोंकी है, फैमिली डोंकी है उनकी, नैना, जो नैना उसकी जो डोंकी है, फीमेल डोंकी, पुलिंग एट हर हेल्टर, जो हेल्टर जो उसकी जो पटा होता है गले में, उसको खींच रही है। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ ए। बंडल ऑफ ए उसका जो खाने वाला चारा पड़ा है, तो उसको खा रही, लेकिन जो है वो अपना सिर खींच रही है। कौन है? डोंकी, फीमेल डोंकी नाना। Grandfather gave Nana a slap across her haunches. Haunches क्या होता है? बैक। What is the meaning of haunches? बैक। उसके बैक पे थप्पड़ मारा। And she jerked back, जोर से पुश हुआ। Dragging Toto with her. Toto भी साथ पे घसीटता हुआ आया। He had fastened on her long ears with his sharp little teeth. तो this was the actual reason. Actually monkey जो है वो क्या कर रहा था? ग्रैंड जो नाना है, नाना के जो कानों के ऊपर जो है वो बाइट कर रहा था छोटे छोटे दांतों से। ही हैड फासन ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। तिखे तिखे दांतों से बाइट कर रहा था, इस वजह से वो अपना जो है पटा जो वो खींच रही। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। उनकी आपस में कभी दोस्ती नहीं हुई। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म water given him by grandmother for his bath. Next we see the next adventure of taking bath with the water. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. ठंड के समय में, कोल्ड विंटर इवनिंग में गरम गरम पानी से नहाना मंकी के लिए क्या एक ट्रीट से कम नहीं था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। कनिंगली मतलब क्लेवरली, बड़ी चालाकी से पहले पानी का टेम्परेचर चेक करता हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू बाथ। ग्रेजुअली मतलब स्लोली नहाने के लिए घुस जाता है। फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग। इसने ऑथर से सीखा था, ऐसे ही मैं करता था, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वो पानी उसके नेक तक नहीं आ जाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। तो जब कंफर्टेबल हो जाता पानी में तो फिर एक हाथ में क्या लेता? सोप। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो जब पानी ठंडा हो जाता तो फिर किचन फायर की तरफ भागता अपने को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर इस चीज़ को देख कोई हंसता तो वो बड़ा गुस्से हो जाता, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती और वो नहाने नहीं जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपका क्वेश्चन भी बनेगा, ध्यान से आप देखेंगे। एक दिन उसने अपने आप को पूरा उबाल भी लिया, बॉयल कर लिया, वो कैसे देखें ज़रा। ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। एक लार्ज किचन कैटल थी, वो फायर पर रखी थी, चाय बनाने के लिए पानी उबल रहा था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। उसने उसका ढक्कन खोल दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ ही गॉट इन विद हिज हेड
sticking out from the open kettle. तो जैसे वो पानी टच कर रहा था गर्म है तो ये बैठने उसमें बैठ गया नहाने के लिए, लेकिन नीचे से गैस ऑन था. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल. कुछ देर तो अच्छा लगा. until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside. अब नीचे से हीट लगती तो ऊपर हो जाता, बाहर ठंड होती थी. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. फिर बैठ जाता, लेकिन बैठता तो नीचे हीट होती. He continued hopping up and down for some time, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तो ये था, ग्रैंड मदर आई और उसको जो उबला हुआ बाहर निकाला. तो ये एक सीन है, एडवेंचर है, रिस्क कि टोटो है कैसे उसने अपने आप को एक दिन पानी में उबाल लिया था. तो ये एक क्वेश्चन भी आपका बनेगा, इसे आप करेंगे. नेक्स्ट वी सी if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. शरारत के लिए अगर कोई दिमाग है तो वो मंकी में ज़्यादा डेवलप होता है. जैसे हम कहते हैं कि मंकी बंदर की तरह है, शरारती है. He was always tearing things to pieces. वो हमेशा कुछ न कुछ फाड़ता रहता था. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress एंड टीयर ए होल इन इट. ऑथर बता रहा है कि मेरी आंट जब आती तो मंकी की टोटो की पूरी कोशिश रहती कि उसकी ड्रेस को फाड़ के उसमें क्या कर दे, एक होल कर दे. नेक्स्ट है, नेक्स्ट एडवेंचर. वन डे एट लंच टाइम, एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम में ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल. पुलाव बनाए, चावल बनाए. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. हमने देखा कि टोटो जो है वो स्टफिंग हिमसेल्फ खा रहा है, राइस खा रहा है. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड. स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना. एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर. जैसे वो चिल्लाई उसने प्लेट जो उसके ऊपर फेंक दी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. मेरी आंट्स उसकी तरफ भागी और उसने मंकी ने क्या किया, पानी का जो गिलास है वो मेरी आंट के मुंह के ऊपर फेंक दिया. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब ग्रैंडफादर आए तो टोटो जो है प्लेट उठाई, डिश ऑफ पुलाव चावलों से भरी हुई, और विंडो से बाहर भाग गया. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down there from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. तो वहाँ से जो है ग्रैंड मदर को जब देखा उसने, तो उसने जो प्लेट जो है वो वहाँ से फेंक दी ग्रैंड मदर को टीज़ करने के लिए, और वो जो प्लेट है वो है क्या हो गई, टूट गई. नेक्स्ट है, ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. तो ये सारी आपने एडवेंचर देखी. शुरुआत में ब्लेज़र का फाड़ देना, कपड़े जो कवर लगा था अलमीरा में वो उसने फाड़ दिया. उसके बाद मंकी के साथ, डंकी के साथ जो है टीजिंग करना, तो वो सारा जो है उसमें. तो उसके बाद हमने देखा कि जो स्टेशन पे गया तो वहाँ क्या किया उसने, और अब ये डिशेस वाला है और कपड़ों को फाड़ने की कोशिश रहती थी उसकी. तो ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. टोटो मंकी जो है, आपने सभी एडवेंचर्स के बेस पे देखा कि हम मंकी को एज ए पेट लॉन्ग समय तक घर पे नहीं रख सकते. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज, ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज़ हो गया. वी वर नॉट वेल टू डू. हम इतने जो है रिच नहीं थे. वेल टू डू का मतलब क्या होता है, रिच. एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर. हम इतने अमीर नहीं थे कि हर रोज़ डिशेस का नुकसान, कपड़ों का नुकसान, कर्टन्स का नुकसान, वॉलपेपर का नुकसान सहन कर पाते. तो सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर. ग्रैंडफादर ने उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढा
and sold Toto back to him for only 3 rupees। 5 रुपये का ख़रीदा था और 3 रुपये में उसको वापस बेच दिया। तो ये थी एक स्टोरी एडवेंचर्स ऑफ टोटो मंकी की। इसमें ये बताया गया है कि जो monkeys आर ऑलवेज मिस्चीवियस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप monkey एज ए पेट एट होम। तो इन दिस वे द चैप्टर यू हैव टू कंप्लीट। लेट अस सी इस क्वेश्चन आंसर्स। These question answer, think about it, you have to do। First question, how does Toto come to grandfather's private zoo? तो प्राइवेट जू में ग्रैंडफादर के कैसे आता है, कौन लेके आता है उसे, स्टोरी के बेस पे आपने लिखना है। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी? जो सेकंड पैरा में हमने पढ़ा था, टोटो की आईब्रोज के बारे में, उसकी फिंगर्स के बारे में, टेल के बारे में। प्रेटी मंकी कैसे, शाइनिंग आइज़ हैं, पर्ली वाइट टीथ हैं, सारा आप मेंशन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? क्यों साथ में लेके जाता है? क्योंकि वो जो है घर पे किसी एनिमल्स को ठीक ढंग से रहने नहीं देता। ही क्रिएट्स प्रॉब्लम एट होम। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग? टिकट कलेक्टर है वो डॉग, टोटो को डॉग क्यों कहता है? वो 4 पैरों वाला समझता है उसको, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ? जो मैंने क्वेश्चन बताया था, वो नहाता कैसे है? पहले पानी को टच करता है, फिर फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, देन सोप। वेयर वाज ही लर्नड टू डू दिस? कहाँ से सीखा उसने? ऑथर से सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? उसको कैसे बॉयल उसने अपने आप को कर लिया था एक दिन? तो ये क्वेश्चन आपने करना है। इस क्वेश्चन को आप अलग से भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन अलग लिख देना और यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका एक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग? ऑथर ऐसा क्यों कहता है कि टोटो ऐसा एनिमल नहीं है कि हम उसको घर पे रख सकें? क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप मंकी एज ए पेट एट होम। तो उसके लिए यू विल हैव टू पे, आपको काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्रेकिंग ऑफ डिशेज़, द टीयरिंग ऑफ कर्टन्स, क्लोथ्स, अलमीराज, पेपर्स एट्सेट्रा। तो इसलिए जो है ऑथर कहता है टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर ए लॉन्ग। So these questions you have to do. Thank you, have a nice day.